بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بہن بھائیو السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ کھجور کتنا پاورفل فروٹ ہے۔ کھجور کھانے کے کیا کیا فائدے ہیں۔ کھجور کھانا ہر انسان کو پسند ہے اور بہت بہترین چیز ہے۔ آج ہم اس کے 15 فائدے آپ تک پہنچائیں گے۔ ایسے فائدے آپ حیران رہ جائیں گے کہ 3-4 کھجور اگر ہم روزانہ کھائیں تو کتنی بڑی بڑی بیماریوں سے ہم بچیں گے اور کتنی بڑی بیماریاں دور ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے حوالے سے بڑی فضیلتیں موجود ہیں۔ اگر آپ روزانہ کھجور کھاتے ہیں تو اس سے آپ کو بہت ساری توانائی اور فائدے ملتے رہتے ہیں۔ کھجور کے اندر فائبر، پوٹاشیم، آئرن، کیلشیم، میگنیشیم اور وٹامن B6 ہوتا ہے اور بہت سارا پروٹین بھی اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ یہ سبھی چیزیں اگر آپ کھجور کی مدد سے اگر روزانہ لیتے رہیں گے تو یہ بہترین چیزیں اور سپلیمنٹ ہے جو آپ کی صحت کے لیے بہترین ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو صحت مند رکھنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی بیماریوں سے، بدلتے موسم سے جو انفیکشنز ہوتے ہیں ان سے بچانا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو جوان بنائے رکھنا چاہتے ہیں تو یہ سبھی چیزیں آپ کے لیے بہت زیادہ اہم ہیں۔ کھجور ہی ایک ایسی قدرتی چیز ہے جو آپ کو تمام وٹامنز مہیا کر سکتی ہیں۔ آپ کی روزمرہ زندگی میں استعمال کی جانے والی شوگر اگر آپ استعمال نہ کرنا چاہیں تو اس کے متبادل کھجور ایک بہترین نعم البدل ہے۔ کھجور ایک ایسی نیچرل شوگر ہے جو کہ فروٹس کے اندر پائی جاتی ہے، تو اگر آپ اس کو ریگولر لیں گے تو اس سے آپ کو جو مٹھاس ہے وہ تو ملتی رہے گی، لیکن اس مٹھاس کے ساتھ ساتھ آپ کو بہت سارا فائدہ بھی ملے گا، کیونکہ کھجور کے اندر بہت سارے نیوٹریشن ہوتے ہیں، فائبر ہوتا ہے اور اینٹی آکسیڈنٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ کھجور کو شوگر کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو کھجور کا پیسٹ بنا لیں اور اس میں پانی ملا کے ایک جار کے اندر ڈال کر مکس کر لیجئے۔ جب یہ پیسٹ بن جائے تو اس کو سٹور کر لیجئے اور ہمیشہ اسی کو استعمال کریں۔ یقین جانیے جب آپ کو ایک کپ میں شوگر ڈالنی تھی تو آپ نے اس کپ میں شوگر کی بجائے کھجور کا پیسٹ ڈالیں گے تو آپ کو کریم جتنی مٹھاس بھی ملے اور نقصان بھی نہیں ہوگا۔ کھجور کے روزانہ کے استعمال سے آپ کی بون ہیلتھ بھی ہوتی ہے۔ کھجور کے اندر فاسفورس، کیلشیم، پوٹاشیم اور میگنیشیم بہت زیادہ ہوتا ہے اور یہ سبھی منرلز بہت ہی اہم ہوتے ہیں آپ کی بون ہیلتھ کے لیے۔ اگر آپ روزانہ کھجور کو استعمال کرتے رہیں گے تو اس کی وجہ سے یہ سب ہی منرلز بھی آپ کو سے ملتے رہیں گے اور اس کی وجہ سے آپ کی جو بون کی ہیلتھ ہے وہ بھی اچھی بنی رہے گی۔ خاص طور پر اگر آپ کی عمر 40 سے 50 یا آپ خاتون ہیں تو آپ کو روزانہ کھجور ضرور استعمال کرنی چاہیے تاکہ آپ کو صحت کے مسائل نہ ہوں۔ کھجور آپ کو کولیسٹرول کم کرنے میں بھی کافی زیادہ مدد کر سکتے ہیں۔ کھجور ایک ایسا فروٹ ہے جس کے اندر کولیسٹرول بالکل نہیں ہوتا، فیٹس بالکل نہیں ہوتے ہیں اور فائبر بہت زیادہ ہوتا ہے اور یہ سبھی چیزیں جو ہیں ایک ایسے کمبینیشن بناتی ہیں جو کہ آپ کے جسم کے اندر سے کولیسٹرول کو کم کرنے کا کام کرتی۔ اگر آپ اپنی سکن کو صحت مند بنانا چاہتے ہیں تو اپنی سکن کو زیادہ گلوئنگ اور جوان بنائے رکھنا چاہتے ہیں تو کھجور اس کے لیے ایک بہت ہی اچھی چیز ہو سکتی ہے۔ جو لوگ کھجور کا روزانہ استعمال کرتے ہیں تو ان کی سکن الاسٹک تنی ہوئی ہوتی ہے، یعنی سکن تنی رہتی ہے۔ کھجور کے روزانہ استعمال سے آپ کا رنگ بھی فائر ہوتا ہے اور سکن کے اندر پپلز یا اس طرح کے جو دوسرے مسائل ہوتے ہیں وہ بھی کم ہو جاتے ہیں۔
अगर आप दुबले पतले हैं और अपना वज़न बढ़ाना चाहते हैं तो आप रोज़ाना खजूर इस्तेमाल करें। खजूर के अंदर नेचुरल शुगर होती है, प्रोटीन होते हैं और विटामिन्स होते हैं और ये सभी वज़न बढ़ाने में बेहतरीन मददगार साबित होते हैं। अगर आप अपना वज़न तेज़ी के साथ बढ़ाना चाहते हैं तो आपको इसे दूध के साथ इस्तेमाल करना ज़्यादा अच्छा होता है। 1 गिलास दूध के साथ करीब 5 से 7 खजूर आप रोज़ाना अगर खाएँगे, ऐसे डायरेक्ट भी खा सकते, मिल्क केक भी बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध के साथ अगर खजूर को इस्तेमाल किया जाए तो इससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। जो लोग रोज़ाना खजूर का इस्तेमाल करते हैं तो इनका दिमाग बेहतरीन तरीके से फ़ाल और काम करता है। अगर आपको याददाश्त या भूलने की बीमारी जैसी कोई प्रॉब्लम है तो इसके लिए बेहतरीन टॉनिक खजूर है। हामला ख़वातीन के लिए खजूर एक बेहतरीन ताकत का ख़जाना है। खजूर के इस्तेमाल से कमज़ोरी का खात्मा होता है। ख़वातीन और बच्चे के लिए खजूर एक बेहतरीन नेचुरल ताकत का ख़जाना है। खजूर के इस्तेमाल से हामला ख़वातीन को जो नेचुरल लेबर में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है, यानी ऑपरेट की बजाय नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि रिसर्च के मुताबिक अगर ख़वातीन खजूर का ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं तो इसकी वजह काफ़ी आसानी हो जाती है कि जो बच्चे दानी का मुंह है वो इसको खोलने में और रिलैक्स होने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है और इसकी वजह से एक तो नॉर्मल बर्थ होती है और जो लेबर के दौरान दर्द होता है और टाइम होता है वो भी कम हो जाता है। इसी के साथ साथ अगर हम मर्दों की बात करें तो अगर मर्द रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं तो इसकी वजह से इनका सुप्रीम टाइम भी बढ़ जाता है। अगर आपके सुप्रीम कमज़ोर हैं या कम हैं तो आप रोज़ाना खजूर के इस्तेमाल से इन मसाइल पर काबू पा सकते हैं। जदीद रिसर्च से ये साबित हो चुका है कि अगर आपको कोई जिनसी कमज़ोरी है तो इस केस में भी आपको खजूर ज़रूर खानी चाहिए। दूध के साथ अगर आप खाते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। आप खाली खजूर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हकीमों और तबीबों ने खजूर खाने के बहुत सारे फ़ायदे बताए हैं। तो आज हम खजूर खाने के फ़ायदे आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। खजूर खाने से कौन-कौन सी बीमारियां हमसे दूर होंगी? कौन-कौन सी बीमारियों से हम बच पाएंगे? खजूर के दरख्त से निकलने वाली गूंद आंतों, गुर्दों और पेशाब की नालियों की जलन को ख़त्म करने के लिए एक बेहद मुफीद है। पेशाब में जलन या तकलीफ़ हो तो गूंद का इस्तेमाल करें। अगर गूंद ना मिले तो आप रोज़ाना खजूर का इस्तेमाल करें तो पेशाब के अंदर जलन पैदा नहीं होगी, तो इंशाल्लाह खजूर इसे दूर कर देगी। कोशिश करें कि अगर खजूर का गूंद मिले तो ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर खजूर के दरख्त का गूंद नहीं मिलता है तो फिर आप खजूर ही खाएं। मुंह की बदबू ख़त्म करने के लिए कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिनके मुंह के अंदर हल्की फुल्की बदबू पाई जाती है, हालांकि वो रोज़ाना मुंह की सफाई भी करते हैं, ब्रश वगैरह भी करते हैं, फिर भी तो इनके हवाले से कहा जाता है कि अगर वो रोज़ाना खजूर खाएं तो इंशाअल्लाह इससे मुंह की बदबू ख़त्म हो जाएगी। भरपूर ग़िज़ा बुनियादी तौर पर खजूर के अंदर ग़िज़ाइयत भरपूर है, यानी खाने के लिए को खजूर एक बेहतरीन चीज़ है कि अगर कोई इंसान खजूर खाता है तो फिर इस इंसान का पेट भी इस खजूर के ज़रिए भर जाता है और इसके अंदर बहुत सारी विटामिन भी होती है। बलगम के खात्मे के लिए जो इंसान खजूर खाता है तो इस इंसान के जिस्म में बलगम नहीं बनता और अगर बलगम हो तो खजूर इसे काट छांट कर बाहर कर देता है। ताकत बढ़ाने का ज़रिया खजूर एक ताकत तो क़ुव्वत वाली चीज़ है, यानी खजूर एक ऐसी चीज़ है कि अगर इंसान इसको रोज़ाना खाए तो इंसान के जिस्म में ताकत व क़ुव्वत बढ़ेगी। जलन ख़त्म करने के लिए जिस्म के अंदर अगर किसी भी किस्म की जलन हो, आप रोज़ाना खजूर खाएं। जिस्म के अंदर तमाम जलन को
ये ख़त्म कर देगा। कब्ज़ कुशा अगर कब्ज़ का प्रॉब्लम है किसी को और पेशाब पखाना करने में दिक्कत होती है, आसानी के साथ पेशाब पखाना नहीं होता है, तो रोज़ाना आप खजूर खाएँ। आप बहुत सारे हमारे साथी ऐसे हैं जो टॉयलेट जाते हैं और काफ़ी देर बैठे रहते हैं। अगर वो रोज़ाना खजूर खाएँ तो कब्ज़ की बीमारी ख़त्म हो जाएगी। क़ुव्वत-ए-बा बढ़ाने के लिए खजूर खाना क़ुव्वत-ए-बा को बढ़ा देती है और पेशाब आवर है। यानी खजूर अगर कोई इंसान खाता है तो मर्दाना ताकत इसके अंदर बढ़ती है और पेशाब की नालियों या कोई पेशाब की कोई प्रॉब्लम हो तो खजूर इसे भी ख़त्म कर देता है। आज हमारे बहुत सारे नौजवान क़ुव्वत-ए-बा के लिए अलग-अलग किस्म की गोलियां जो मेडिसिन होती हैं वो खाते हैं, जिसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, लेकिन अगर वो खजूर का इस्तेमाल करें तो क़ुव्वत-ए-बा में इज़ाफ़ा होगा, मर्दाना ताकत बढ़ेगी और इंशाअल्लाह इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं भी आपको नहीं पहुँचेगा। जिगर की सफाई के लिए खजूर को पानी में भिगोकर अगर इसका पानी पिएँ तो जिगर साफ़ सुथरा रहेगा। जिस पानी में आप भिगोते हैं खजूर तो आप खाएँ ही, इस पानी को अगर आप पी लेते हैं तो आपका जिगर एकदम बिल्कुल साफ़ सुथरा रहेगा। अल्लाह पाक हर मुसलमान को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।